السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جو موڈ ہے، جو لوگوں کے احساسات ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں. کچھ تو بہت جینون ہے جو واقعی تکلیف سے گزرے. خود میڈیا جو ہے، ہم لوگ جو ہے میڈیا میں اس وقت، میں بڑے محتاط اندازے کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی 60-70 ہزار لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئے ہوئے ہیں، اور جو روزگار پہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی بیچارے دعووں پہ اور وعدوں پہ اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں. کہیں پہ سیلریز کاٹ دی ہیں، کہیں الاؤنسز کاٹ دی ہیں. پہلے بھی نہیں ملتے تھے پورے، اوور ٹائم تو خاک ملنا. اور یعنی اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے بیچارے کی موٹر سائیکل پہ تو اس کا پھر کوئی والی وارثی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی میڈیکل ہے، نہ کوئی اولڈ ایج بینیفٹ ہے، نہ کچھ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان ایک مشکل ٹائم سے ضرور گزر رہا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے خدا نخواستہ کہ جو انسان ہوپ لیس ہو جائے جس میں. اور اس میں بہت لوگ جو ہیں اپنی سیاست کرنے کے لیے ہوپ لیسنس کریٹ کر رہے ہیں. ان کے لیے شاید ٹھیک ہو، ان کی سیاست شاید اسے جسٹیفائڈ ہوتی ہو، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ خود لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ حکومت میں کیا کر کے گئے ہیں، کیا چھوڑ کے گئے ہیں، آنے والی حکومتوں کے لیے کیا کر کے گئے ہیں، اور کیوں جو ہے وہ یہ مشکلیں پیش آ رہی ہیں. سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سارے سمجھدار لوگ ہیں، آٹے دال کا بھاؤ سب کو پورے کا پورا پتہ ہے. ایک بہت بڑا جو پرابلم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، بلکہ دو پرابلمز ہیں، لیکن میں ایک آپ کو بتاتا ہوں. اوپنلی لوگ کہتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کون اس کے خلاف ہو جائے گا میرے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے، پاکستان بتدریج نیچے جا رہا ہے. اور یہ 18ویں ترمیم جو ہے، اس سے سندھ میں تو ضرور پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا کہ اگر 110 بلین 120 بلین سندھ ریونیو بورڈ ہر سال اکٹھا کر لیتا ہے، اور پھر آگے وہ لگنا نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دینا ہے. کوڑے کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، جس چیز کا مرضی مسئلہ ہو، آگے انہوں نے لوکل باڈیز کو دیا نہیں ہے. سندھ میں جو لوکل باڈیز ہیں وہ بے یار و مددگار ہے، اور ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، ان کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ سے مانگ رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ ارن کرتی ہیں، لیکن وہ اپنی ارننگ کنٹریبیوٹ نہیں کرتی فیڈرل گورنمنٹ کو. وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اور دے جاؤ، جو کہ دے رہی ہیں. اور اب ان کے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا ایسکلیٹ کر گیا ہے کہ ان کی آمدنی سے بہت زیادہ ہو گیا. اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہ خدا نخواستہ ملک بینکرپٹ ہی نہ ہو جائے. اب اس ملک میں حالت یہ دیکھیں کیا ہوئی ہوئی ہے کہ موٹر وے بنانے کے لیے آپ نے لون لیا، موٹر وے کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے لون لیا، اور جنگلہ بس بنانے کے لیے آپ نے اسی موٹر وے کو گروی کر دیا. تو آپ کے پاس ایسیٹس بھی اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں. سارے کے سارے آپ کے ایسیٹس جو ہیں، وہ بھی میجر ایسیٹس کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت سے ایسیٹس وہ گروی پڑے ہوئے. بیڈ پلاننگ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اوپر سے گورنمنٹ کی اگر کمیونیکیشنز کی ٹیم ہے، وہ لوگوں کو یہ سمجھا نہیں پا رہی کہ یہ 18ویں ترمیم کس طرح ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، یا ہم سے پہلے جو کر کے گئے ہیں اس کا یہ فال آؤٹ کیسے ہو رہا ہے. اب لوگوں کا تھریش ہولڈ لیول جو ہے وہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے. وہ ملکوں کی زندگی کو گیج کرتے ہیں اپنی انسان کی زندگی سے، کہ جی میری زندگی میں تو 10 مہینے کی ایک بہت اہمیت ہے. 10 مہینے یا 1 سال کے بعد آدمی کی زندگی کا 1 سال ختم ہو جاتا ہے، لیکن ملکوں کے لیے 1 سال کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. آپ دیکھیں امریکہ کے اگر 200 سال سے زیادہ ہو گئے ان کی تاریخ کو، تو 1962 تک تو وہاں پہ سیاہ فام کو یا خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی اسی جمہوریت میں. ان کو کتنا ٹائم لگا اپنی جمہوریت کو فائن ٹیون کرنے میں، ان کو کتنا ٹائم لگا اپنی جمہوری اقدار کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے میں اور ان کو سمجھنے میں. اور آپ کو 70 سال ہوئے ملک کو بنے ہوئے. اور جب میں دیکھتا ہوں اپنے بچپن سے میں ابھی تک دیکھتا ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں جو مثلاً لاہور شہر کا جو حال تھا، کوئی سڑک تو ڈبل سڑک تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، نہ تھی. سنگل روڈز تھیں، سنگل لینز تھیں. اب وہ جو ہے ہم لوگ موٹر سائیکلوں پہ اچھے یعنی ویل آف لوگ جاتے تھے، ورنہ سائیکلوں پہ ہم لوگ زیادہ ہوتے تھے. گاڑیاں کم ہوتی تھیں. اس کے بعد ہمارے گھر جو تھے وہ پرانے گھر تھے، جوائنٹ فیملی سسٹمز تھے، اور 4 لوگ جو تھے وہ فیملیز ایک گھر کے اندر رہ رہی ہوتی تھی. تو بجٹ جو تھے وہ پول ان ہو جاتے تھے. زیادہ بجٹ کھانے پینے کا ہوتا تھا اور وہ شیئر ہو جاتا تھا، تو لگتا تھا اور ہوتا بھی تھا کہ برکت بھی ہوتی تھی اس میں. اب ایفلوئنس آنا شروع ہوئی ہے اس ملک میں.
पोस्ट अफगान वॉर जो एफ्लुएंस आई पाकिस्तान के अंदर, उसमें सडनली हर घर में एक गाड़ी नहीं, हर घर में दो दो गाड़ियाँ आना शुरू हो गई। हर कमरे में लोगों के टेलीविज़न सेट्स आना शुरू हो गए। वो टेलीविज़न सेट ट्रेडिशनल रिप्लेस हो गए, वो एलईडी से रिप्लेस हो गए। हमारे हाथ में मोबाइल गैजेट्स जो हैं वो भी लाख लाख रुपए के या 1.5 लाख रुपए उनकी मालियत है, और जो कमज़ोर भी है उसके हाथ में भी 10,000 का जो एक मोबाइल सेट है। हमारे जो कपड़े हैं उनकी सडनली वो टेलर मेड से डिज़ाइनर मोड में आ गए, और डिज़ाइनर मोड से बाहर के डिज़ाइनर मोड में आ गए। और ये अवेयरनेस की बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई अच्छाई भी नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस जैसे आती गई एफ्लुएंस के साथ साथ लोग अपने परफ्यूम्स जो हैं वो बेहतर से बेहतर करना शुरू हो गए। अपनी घड़ी, अपनी गाड़ी, अपनी सवारी, अपना स्कूल, बच्चों की तालीम, बाहर भेजना बच्चों को आला तालीम के लिए, ये सब हमारी ही फैमिलीज़ में हुआ, जो कि पहले आज से 50 साल पहले मुमकिन नहीं होता था। हम ऐसा मुल्क है जो पॉपुलेशन में शायद हम छठे नंबर पे हैं, लेकिन वी आर द 7th न्यूक्लियर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारी आर्मी जो है दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है, बैटल हार्डन्ड आर्मी है। हमारा जो बॉर्डर है वो हमारा 3,600 किलोमीटर एक्टिव बॉर्डर है। दुनिया में किसी मुल्क का इतना लंबा एक्टिव बॉर्डर नहीं है, और हमारा सॉफ्ट बॉर्डर है। अब वॉल्स बन रही हैं अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और इंशाल्लाह जब बजट होगा तो हम इंडिया के बॉर्डर के ऊपर भी बनाएंगे, और उससे इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कम होना शुरू होगी, बल्कि काफ़ी कम हो गई है। फिर हम वॉर ऑन टेरर के बीच में ट्रैप हो गए, एक ऐसे हम वॉप जोन के अंदर आए हैं कि वॉर ऑन टेरर के बीच में ट्रैप हो गए। फिर लसानियत की जंग में ट्रैप हो गए हम उर्दू स्पीकिंग और पठान और मुहाजिर और इनकी लड़ाइयों में ट्रैप हो गए। फिर हम शिया और सुन्नी के फसाद में ट्रैप हो गए। फिर हम सुन्नियों के अंदर मज़ीद डिविजन्स के अंदर हम उसके अंदर ट्रैप हो गए। हम इंटरफेथ हार्मनी की बात करने वाले इंट्राफेथ जो है उसको हम कायम नहीं रख सके, और उसके अंदर ट्रैप हो गए। हमारा हिर्स जो था, हमारा हिर्स कह लें या हमारी ग्रीड कह लें, वो वक्त के साथ साथ जब बड़ी होना शुरू हुई तो हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो भी कम होना शुरू हो गया। हम एकदम से हम गुस्से में आ जाते हैं, हम एकदम से दूसरे को हम इल्ज़ामात देना शुरू हो जाते हैं। हमारे में ज़ीरो टॉलरेंस हो गई है। गाड़ी अगर सड़क पे लग गई तो पहले हम ये नहीं पूछते अगले से कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, हम पहले उसको कहते हैं कि एक ही करता है, मेरी गड्डी दी बत्ती तोड़ दी, पता कितनी महंगी है। तो हम ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को वैल्यू करना शुरू हो गए। अब ऐसी चीज़ों में हमें डिप्रेशन होना शुरू हो गई। एडेड टू दैट, जब एक आम आदमी का लाइफस्टाइल देखते हैं कि अब मैं अपने वालिद का टाइम याद करता हूँ तो 2 बजे घर आ जाते थे, और 2 बजे के बाद फिर वो रेस्ट करना, रेस्ट के बाद फिर उठना, फिर गेम्स पे जाना, फौज में थे, गेम्स करनी, उसके बाद आना, फिर शाम को क्लब चले जाना, ये एक लाइफस्टाइल था। लेकिन अब 2 बजे वही ऑफ करके आएगा जिसको मालिक जो है वो नौकरी से छुट्टी देगा कि अब तुम चले जाओ, तुम निकाल दिए गए हो, वही उस दिन 5 बजे से पहले या 2 बजे के टाइम पे घर आ सकता है। हमारे वर्किंग आवर्स जो हैं, जितना मैंने पिछले 5 साल में काम किया इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स, कि जितने घंटे मैंने काम किया, मेरा ख्याल है कि मेरे आबा व अजदाद ने शायद इतना 20-20 साल में काम ना किया हो, क्योंकि मैन आवर्स ही कम लगाते थे उस वक्त, हम लोग ज़्यादा लगा रहे हैं। फिर हमारा जो माइंड की एप्लीकेशन है वो मल्टीपल डायमेंशन में, हम एक ही वक्त में बात भी कर रहे हैं, एक ही वक्त में फ़ोन भी कर रहे हैं, एक ही वक्त में हम गाड़ी भी चला रहे हैं, एक ही वक्त में हम आगे की मीटिंग भी प्लान कर रहे हैं, और एक ही वक्त में हम सोच रहे हैं कि मेरा चेक दिया हुआ है वो बाउंस हो रहा है। हमारे पास इस वक्त वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और प्रेशर लोड्स हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसमें लोग अब क्रैंकी होना शुरू हो गए हैं। ये टाइम डेंजरस है। दिस कैन मेक अस और दिस कैन ब्रेक अस। अगर हम जो है एहसास महरूमी फैलाते रहेंगे, अगर हम वो जो है लोगों के अंदर डिप्रेशन फैलाते रहेंगे, तो फिर हमारा एंड खुदा न खास्ता अच्छा नहीं है। लेकिन इफ़ वी कैन टेक दिस, और अगर हम इफ़ वी सेट बैक, सांस लें, ठंडा सांस लें, पानी पिएं, और उसके बाद रीग्रुप करें अपने आप को, सोचें कि हमने क्या करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डॉलर अब जिस प्राइस पे चला गया, हो सकता है अखबार वालों के लिए मुमकिन ना हो कुछ अरसे के बाद अखबार पब्लिश करना, क्योंकि अब 40 रुपए का भी अखबार बेचेंगे तो शायद उसकी कॉस्ट ना पूरी हो, क्योंकि न्यूज़ प्रिंट सारा इंपोर्ट हो रहा है, उसकी इंक इंपोर्ट हो रही है, तो एक बहुत सीरियस कॉस्ट उसको पड़ गई है। तो अब उनको भी देखना है कि वो वेब्स पे आएंगे, वो अपनी इंटरनेट के ऊपर आके दोबारा से अपनी इशाअत जो है या जिनकी पहले से चल रही है उसको किस तरह से स्ट्रेंथन करेंगे, उसको किस तरह से आगे लेके जाएंगे। आपको नए
बिजनेसेस अब इवॉल्व होंगे। पुराने हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं वो शायद एक्लिप्स हो रही हैं, फेड आउट हो रही हैं वक्त के साथ साथ। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ई कॉमर्स आ रहा है, ई बिजनेसेस आ रहे हैं। हमें अपने आप को एजुकेट करना है, वो हम करने से घबरा रहे हैं, वो हम करने से डर रहे हैं। हम नए मेथड्स को, नए इलाज को, नए ट्रीटमेंट को एंगेज करते हुए हमें खौफ आ रहा है। बट वी नीड टू बी रियलिस्टिक ओवर हियर। खुदा न खास्ता आज से 50 साल पहले हमारे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने बहुत कुछ हमें दे दिया और बहुत ज़्यादा दिया। बहुत मुल्कों में यही डिप्रेशन है इस वक्त जो हमारे यहाँ सिर्फ एक फ़र्क है, हमारे यहाँ डॉलर जो है वो ऐसी कलाबाजियाँ खा रहा है कि वो ऑब्वियसली कनाडा में वो प्रॉब्लम नहीं है, वो इंग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, लेकिन फूड की राइजिंग कॉस्ट का वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, एनर्जी कॉस्ट का वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। वहाँ पे भी लोग जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपना महीना पूरा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारा महीना कैश खर्च करके आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं और वो बैठ जाते हैं, नहीं, दे बैलेंस आउट देयर पेमेंट्स के। एक दफ़ा मियाँ का कार्ड यूज़ हो रहा है, एक दफ़ा बीबी का हो रहा है, उसमें कितना बैलेंस रह गया, उसकी मिनिमम पेमेंट करनी है, उसका ये करना है। तो आई मीन लाइफ इज़ नॉट ईजी एनी वेयर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे फिर भी हमें बड़ी एचेज़ हैं, हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प है, हमारे पास काम करने वाले हैं, हमारे पास सपोर्ट स्टाफ है। हम उसकी क्वालिटी के ऊपर बहस कर सकते हैं, लेकिन है उन मुल्कों में देखें जाके लोगों को जहाँ सारा काम उनको खुद करना पड़ता है। चलें, हम उन प्रिविलेज लोगों में से हैं जिनको ये, और मैं देख रहा हूँ कि कंप्लेन अभी प्रिविलेज लोग कर रहे हैं। जो हैव नॉट्स हैं वो बेचारे सब्र शुक्र कर रहे हैं, वो अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी का कुछ सबब निकालेगा। लेकिन हम हैव्स जो हैं वो हम डिस्पेयर फैला रहे हैं। आई थिंक दिस शुड सीरियसली चेंज। पाकिस्तान के इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं, आने हैं। वो 1 साल में है, वो 6 महीने में। मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि सीरियस रीग्रुपिंग हो रही है, सीरियस मेहनत हो रही है, सीरियस एफर्ट हो रहा है इसको अपने ट्रैक पे करने का, इस मुल्क को इंशाल्लाह, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो उसका बेनिफिट लें। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ऐसी कौम हो गए कि दोपहर को गाड़ी पार्क करने के लिए हम साया ढूंढते हैं कि हमें साया मिल जाए, हम गाड़ी उसमें खड़ी करें ताकि गाड़ी गर्म ना हो जाए। लेकिन हम में से कितने हैं जिन्होंने ज़िंदगी में एक दरख्त प्लांट कर दिया है कि हम दरख्त प्लांट कर दें ताकि उसके साए में कोई तो अपनी गाड़ी खड़ी कर ले? वो हम नहीं करते, हम सिर्फ मांग रहे हैं, लेकिन हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो हम नहीं कर रहे। गवर्नमेंट अगर टैक्स कर रही है तो हर आदमी ना टैक्स दे सकता है ना उसको टैक्स देना है, लेकिन फाइलर तो होना ज़रूरी है ना, कि आप टैक्स फाइलर हों, आप डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी तो हो। हर दुकानदार जो है वो शोर मचा रहा है सेल्स टैक्स के ऊपर, हालांकि सेल्स टैक्स उसने देना नहीं है, तो दुकानदार क्यों शोर मचा रहा है? वो इसलिए शोर मचा रहा है कि उस तरह उसकी आमदनी कैलकुलेट हो जाएगी। उसकी जब आमदनी कैलकुलेट होगी कि कितनी सेल हुई उसकी दुकान में, तो उसकी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी, जो हम हाइड कर रहे हैं, हर दफ़ा से हाइड कर रहे हैं। तो अब इसको ज़रा सा रियलिस्टिक होकर सोचें। 1 साल ज़रूर मुश्किल का है, लेकिन इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। और अगर इस मुल्क के सियासतदानों को ख्याल आ गया तो शायद 18वीं तरमीम को रिवर्स करें, ताकि वफाक जो है वो बगैर डिस्पैरिटी के सूबों में तफरीक किए बगैर स्पेंडिंग भी कर सके, ताकि एजुकेशन, हेल्थ केयर, पीने का पानी और सिक्योरिटी, ये चीज़ें तो चारों सूबों के अंदर यूनिफॉर्म हो। सोचने की बात है। Until the next time, अल्लाह हाफिज़। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। टेक केयर।